جی تو یہاں پر جو ہے انسان کے بارے میں یعنی کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ تو یعنی کہ کیوں اتنا ناشکرا ہے، کیوں اتنا تو سخت منکر ہے، ناشکری کرتا ہے، کہ تو اپنا بتا کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ وقدرہ ثم السبیل یسرہ، انسان کی پیدائش کی طرف غور و فکر کی دعوت، تاکہ انسان غور کرے کہ تو متکبر بنا ہوا ہے، تیرے سامنے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہیں وہ حق کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور تو متکبر بنا ہوا ہے، تو ناشکری کر رہا ہے اس اتنی بڑی عظیم نعمت کی، تو اپنی پیدائش پر غور کر۔ یعنی پہلے تو ذرا یہ اپنی حقیقت پر غور کر کہ کس چیز سے تو وجود میں آیا ہے، کس جگہ اس نے پرورش پائی، کیسے راستے سے دنیا میں آیا، اور کس بے بسی کی حالت سے دنیا میں اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ تو اپنی یعنی کہ اپنی اس اصل کو بھول کر تو یہ کیا کر رہا ہے، کس چیز میں، کس غلط فہمی میں تو مبتلا ہے، اور کہاں سے اس کے دماغ میں یہ ہوا برتی ہے کہ اپنے خالق کے سامنے تو منہ پھیرتا ہے۔ یعنی کہ حقیقت کیا ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی بن رہا ہے، تو اس کی تقدیر طے کر دی گئی، ابھی تو یعنی کہ پیدائش کے مرحلے سے نہیں گزرا، ابھی تو پیٹ میں ہی تھا ماں کے، 4 ماہ کا تھا، تیری تقدیر جو ہے وہ طے کر دی گئی، تیری جنس کیا ہوگی، رنگ کیا ہوگا، قد کتنا ہوگا، جسامت کیسی ہوگی، اور کیسی ہوگی، کس قدر ہوگی، اور جو تمہارے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ کس حد تک صحیح سالم ہوں گے، کس حد تک ناقص ہوں گے، اس کی شکل و صورت آواز کیسی ہوگی، اس کے جسم کی طاقت کتنی ہوگی، اس کے ذہن کی صلاحیتیں کیسی ہوں گی، کس سرزمین، کس خاندان، کن حالات اور کس ماحول میں تو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہر چیز، تیری پرورش اور تیری تربیت تو کہاں سے پائے گا، کیا بن کر اٹھے گا، ٹھیک ہے، اور کس شخصیت کی تعمیر میں تو تیری موروثی اثرات ہوں گے، کون ہوگا جو کون شخصیت ہوگی جو تیری یعنی کہ تعمیر کرے گی، ماحول کے اثرات اور اس کی اپنی یعنی کہ خودی کیا اثر ہے تیری اپنی ذات کا تجھ پر کتنا ہوگا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا۔ تو پھر اس کے باوجود یعنی کہ کتنا وقت انہیں زمین میں گزارنا ہے، تیری تمام جو تقدیر ہے اس کے جو ہے فیصلے کر دیے گئے ہیں، بال برابر بھی تو اس سے ہٹ نہیں سکتا، نہ اس میں ذرہ برابر تو تبدیلی کر سکتا ہے۔ پھر کیسی عجیب اس یعنی کہ تیری جرت ہے کہ جس خالق کی بنائی ہوئی تقدیر کے آگے اتنا تو بے بس ہے، تو اس کے مقابلے میں کفر کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ہٹ دھرم بنا ہوا ہے، متکبر بنا ہوا ہے۔ یعنی دنیا میں وہ تمام جو اسباب و وسائل اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو فراہم کیے ہیں، جن سے یہ کام لیتا ہے، اور اس کے جسم اور ذہن کی جو ساری قوتیں ہیں جو اس سے ثابت ہوتی ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، پھر زمین کا جو جتنا بھی سر و سامان مہیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے، تو یہ تمام جو امکانات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیری ہستی کے لیے پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے یہ موقع دیا ہے کہ اپنے لیے تو خیر یا شر، شکر یا کفر، یعنی کہ طاعت یا عصیان کی تو یعنی کہ راہ اختیار کرنا چاہے تو تیری مرضی ہے، تو تجھے اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے، تو کر سکتا ہے۔ اس دونوں راستوں میں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا ہے، کھول کر رکھ دیے ہیں تیرے سامنے، تو اب جو چاہے جس راستے پر چل، اپنی پیدائش، اپنی تقدیر کے معاملے ہی میں، یعنی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی یعنی کہ موت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا ہے کہ بالکل انسان کو بے بس کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بے اختیار کر دیا ہے، انسان کے بس کی کوئی بات نہیں، نہ وہ اپنے اختیار سے پیدا ہوتا ہے، نہ انسان اپنے اختیار سے مر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے ٹال سکتا ہے۔ جس وقت جہاں جس حال میں اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس وقت اسی جگہ اسی حال میں اس کو موت آ کر رہے گی، اور جس نوعیت کی قبر بھی اس کے لیے طے کر دی گئی ہے، اس نوعیت کی قبر میں
वो वदियत होगा। किसी जानवर के पेट में उसकी कब्र है, किसी समंदर में उसकी कब्र है, उसकी कब्र जो है वो ज़मीन पर है, कहाँ पर है, कैसे है, किस तरह से है, अल्लाह ताला ने उसकी कब्र की जगह मुतय्यन कर दी है। इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि इंसान जो जगह मुकर्रर करता है अपनी कब्र के लिए, वहां उसकी कब्र नहीं बनती। मतलब क्या कि इंसान का अपना इख्तियार इतना भी नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में अगर कोई कब्र की जगह मुकर्रर करता है तो उसकी कब्र बन जाए। तो इंसान इतना बेबस है। अब देखो उसका जो कब्र है, जमीन का पेट है, समंदर की गहराइयां हैं, आग का अलाव है। कुछ कितने लोग हैं कुफार जो आग में जला के भस्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, राख बना देते हैं, उड़ा देते हैं, समंदर में बहा देते हैं। किसी दरिंदे का जो मैदा है उसमें इंसान जाएगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इसका भी मामला वो इंसान जो है बदल नहीं सकता। इंसान को गौर करना चाहिए कि इसकी मजाल नहीं है कि अपने खालिके कायनात के सामने दोबारा से वो यानी कि जिंदा हो सके या जिंदा को मौत दे सके। तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि इंसान तो इतना शुक्रा कैसे है, कुतिलल इंसानु मा अकफरहू मिन अय्यि शैइन खलक़हु मिन नुतफतिन खलक़हु फक़द्दरहु सुम्मा सबीला यस्सरहु सुम्मा अमातहु फअकबरहु। फिर इसे मौत दी और कब्र में पहुंचा दिया। तो फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात ने कि इसकी जो यानी कि ना तो इसकी राय ली गई जब इसको पैदा किया गया, ना इसके इनकार करने पर इसको दुनिया में लाने से रोका गया। तो इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात दोबारा पैदाइश पर भी इसकी मर्जी पर अल्लाह ताला की ज़ात मौकूफ नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात जब चाहे जिस वक्त चाहेगी क़यामत बर्पा करेगी। जिस तरीके से मौत का इंसान को पता नहीं चलता, ऐसे ही क़यामत आएगी। तमाम मुर्दे अवलिनो आखिरीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर इंसान तक जितने भी हैं सारे उसके हुक्म से उठ खड़े होंगे। तो ए इंसान, तेरा यानी कि इख्तियार ही नहीं है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। फिर किस चीज ने है इंसान तुझे अपने रब्बे करीम के बारे में गरक कर रखा है? कौन सी चीज है तुझे इतना हट धर्म, इतना नाशुक्रा बना दिया है, इतना यानी कि तू नाशुक्री पे उतर आया है? तो आप देखिए कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात कब्र जो है वो ना पैदा करे, इंसान के लिए जो उसकी तख्लीक का जो मरहला है कब्र, वो अगर ना हो तो गौर करे कि इंसान की लाश कहाँ गल सड़ जाए, परिंदे नोच के खा जाए, दरिंदे नोच कर खा जाए। ये भी उसकी रहमत है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को एहतराम के साथ दफन करने का कब्र के अंदर हुक्म दिया है। एहतराम के साथ, उसको तज़ीम के साथ उस इंसान के जो है ना वो तदफीन की जाए, उसको कफनाया जाए, उसको नहलाया जाए, तमाम जो लवाजमात हैं उसके पूरे किए जाएं, फिर उसको सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि इंसान के जहनों में अल्लाह ताला की ज़ात ने ये वदियत किया है कि इंसान इतने इकराम के साथ दफनाया जाता है। आगे कब्र की जो हालात हैं, कब्र की जो मनाजिल हैं, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है वो क्या होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के यानी कि ये तज़ीम के लिए ये चीज़ देखो वदियत की है इंसान के दिमाग में। और अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर हिदायत की सूरत भी इंसान के अंदर वदियत की है। यानी कि इंसान जो है वो जो चाहता है ज़मीन से लेकर आसमान तक कायनात का हर हर ज़र्रा और अल्लाह ताला की कुदरत इलाही का हर मज़हर जो है ना वो इशारा कर रहा है। किसकी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो हिदायत के रास्ते दिखाए हैं दो, उनकी तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह ताला ने जो अंबिया भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, सहाइफ भेजे हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर दीन को मुकम्मल किया है। और इस पे दीन पे फिर फरमाया कि मैं इस दीन से राज़ी हो गया हूँ, यह मुकम्मल दीन है, ये दीन इस्लाम है। ये सारी अल्लाह ताला की रहमत है, उसका करम है। फिर भी जो इंसान है उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। जैसे मैंने आपको अभी ये आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की थी, सुम्मा सुम्मा अमातहु फअकबरहु, फिर उसे मौत दी और कब्र में पहुंचाया। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरहु, फिर जब वो चाहे उसे दोबारा उठा खड़ा करे। कल्ला लम्मा, हरगिज नहीं, उसने क्या किया है, यकदिमा अमरहु, वो फर्ज अदा नहीं किया जिसका अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था। अब देखिए अल्लाह ताला ने इसको क्या हुक्म दिया था।
کہ आप अपने इल्म और अकल की कुव्वतें अल्लाह ताला के ने देकर उसको छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी जो रहनुमाई का रास्ता खुद जो है तू चुन, नबी भेजे, किताबें भेजी, सहाइफ भेजे, दीन को मुकम्मल किया। हर चीज करने के बावजूद अल्लाह ताला की जात ने क्या फरमाया कि अब तुझे वहदैनाहुन नजदैन, हमने उस दोनों रास्तों की तरफ खैर और शर का रास्ता दिखाया, नुमाया किया। फिर फरमाया सूरह शमस में आपने पढ़ा था, वनफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और कसम है इंसान के नफ्स की और उसकी जात की जिसने उसे तमाम ज़ाहिरियों बातनी कुव्वतों के साथ उसे इस्तवार किया। फिर उसका फजूर, उसका फिस्क उसके सामने, उसका तकवा उसके सामने उसको इल्हाम कर दिया। आप देखिए जब इंसान को पैदा किया, इसमें तमाम जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मजीद में तफसीली बयान बार बार फरमाए। अल्लाह ताला ने इंसान को हिदायत के लिए दुनिया में क्या क्या इंतजामात नहीं किए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि है इंसान, तेरे इल्म व अकल की सलाहियतें देने के साथ साथ तुम्हें मैंने इखलाकी हिस्स भी दी है, जिसकी बदौलत तू फितरी तौर पर भलाई और बुराई में इम्तियाज करता है। और बाज अफ़आल को तू बुरा जानता है, अगरचे तू उस पर खुद, तू उस बुराई में खुद पड़ा हो। एक शराबी आदमी जो है, जानी आदमी जो है, चोर है, डाकू है, वो किसी भी बुराई में मुब्तला है, लेकिन वो ये जानता है कि ये बुराई है। जब वो किसी को यही सेम काम करता हुआ देखेगा तो वो दिल में जानेगा अभी ये काम, जिस काम में मैं मुब्तला हूँ बुराई वाले काम में, मेरा सामने वाला भी इस काम में पड़ गया है, ये तो काम बुरा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने वदियत कर दिया है उसके दिलो दिमाग में। अल्लाह ताला की ज़ात ने बुराई और अच्छाई, तकवा और परहेजगारी, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, उस अल्लाह ताला की ज़ात ने इल्हाम कर दी है। तो इसलिए इंसान जानता है कि उसकी अच्छाई का रास्ता कौन सा है, बुराई का रास्ता कौन सा है, उसके लिए किस में फ़ायदा है, किस में नहीं। तो वो तमाम अफ़आल जो खुद बुरा जानता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात जब वो खुद इसमें मुब्तला होता है तो वो यानी कि इतना नहीं समझता, जितना जब दूसरा मुब्तला होता है तो वो उसको बुरा समझता है। हत्ता कि जिन लोगों ने अपनी यानी कि एराज़ो ख्वाहिशात की खातर ऐसे फ़लसफ़े गढ़े हैं कि जिनकी बिना पर बहुत सी बुराइयों को उन्होंने अपने लिए हलाल किया है, उनका भी ये हाल है कि वो बुराइयां अगर कोई दूसरा उनके साथ करे तो वो चीख उठते हैं। इससे क्या मालूम होता है कि अपने झूठे फलसफों के बावजूद हकीकत में वो उनको बुरा ही समझता है। इसी तरह जो नेक अमाल और असाफ को ख्वाह किसी ने जहालत और हमाकत और दिक्यानुसियत ही करार दे रखा हो, लेकिन जब किसी इंसान से खुद उसकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचता है तो वो उससे खुश होता है। दीन पर खुद चल रहा है या नहीं चल रहा, किसी लिए कोई भला करता है या नहीं करता, जब उससे कोई भलाई करता है तो उस भलाई से खुश होता है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने उसकी जो दिमाग में फितरतन उसके अंदर जो तकवा की सिफ्त रखी है या फजूर की जो सिफ्त रखी है, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको वो अच्छे तरीके से पहचानता है। लेकिन ये अलग बात है वो तकब्बुर कर रहा है, वो तकब्बुर में अटा हुआ है, इस वजह से कर रहा है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो नफ्से लवामा, आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा कितनी मतलब लफ्ज़ लवामा, ये जो अल्लाह ताला की ज़ात ने ये चीज़ जो उसके अंदर रखी हुई है, वो हर वक्त उसको हर मौका पर टोकती है, हर मौका पर टोकती है। वो कोई बुराई करने वाला हो या कर रहा हो या कर चुका हो, इस ज़मीर को ख्वाह इंसान कितनी ही थपकियाँ देकर सुला दे, कितनी ही थपकियाँ देकर सुलाना चाहे, तो वो दुनिया में ढीठ तो बन सकता है, बेहिस तो बन सकता है, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, लेकिन वो कतई तौर पर बेज़मीर साबित नहीं कर सकता। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ये जो नफ्से लवामा रखा हुआ है, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, जो इंसान को अच्छाई और बुराई पर वार्न करता है, वो कभी भी नहीं कह सकता कि हम जो कहते हैं फलां बंदा बेज़मीर है, नहीं, बेज़मीर नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर ये चीज़ रखी है, तख्लीक की है, उसके साथ पैदा हुई है। वो ज़मीर नहीं है, वो मुतकब्बर है, वो जाहिल है, वो इस चीज़ के नुकसान को नहीं जान रहा, समझने की कोशिश नहीं कर रहा। तो वो हुज्जतें बिगाड़ यानी कि बिगाड़ कर दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो अपने नफ्स को भी फरेब देने के लिए, अपने अफ़आल के लिए बेशुमार उज़रात पेश कर रहा है। और इसके बावजूद अल्लाह ने उसकी फितरत में जो मुहासिब
बिठा रखे हैं, वो इतने जानदार हैं कि किसी बुरे इंसान से ये बात छुपी नहीं रहती कि वो हकीकत में क्या है। यही बात अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरा क़यामा में भी फरमाई है कि इंसान खुद अपने आप को खूब जानता है, ख्वाह वो कितनी ही माज़रतें पेश करे, इंसान जानता है अपने आप को कि मैं, मेरा अमल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। इंसान यानी कि यही बात है कि इंसान जो है अपने वजूद और उसके जो गिरदो पेश, ज़मीन से लेकर आसमान तक सारी कायनात में हर तरफ ऐसी बेशुमार निशानियां फैली हुई हैं जो ये खबर दे रही हैं कि ये सब कुछ किसी खुदा के बगैर नहीं हो सकता। ना बहुत से खुदा इसका इसका जो है इस कारखाना हस्ती को बनाने वाले हैं और चलाने वाले हो सकते हैं। एक ही रब है, एक ही खुदा है, एक ही मबूद है जिसका कोई शरीक नहीं है। इस कारखाना हस्ती को वही चला रहा है, इसलिए तमाम कायनात पर हुकूमत भी उसी की है। और ए इंसान, तेरे वजूद पर भी, तेरे दिलो दिमाग पर भी हुकूमत उसकी है। तुझे कुछ अल्लाह ताला की ज़ात ने इख्तियार दिए हैं ताकि तू नेकी और बदी को पहचान सके, उसके बावजूद भी तू इस कदर नाशुक्रा है। इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में यानी कि उसी के हम असर दुनिया में और उससे पहले गुजरी हुई तारीख की जो तजुर्बात हैं उसमें भी बेशुमार वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जो इंसान जो है वो देखता रहता है और उससे साबित भी कर लेता है कि सबसे जो बालातर हुकूमत है सारी कायनात पर, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, जिसके आगे वो बिल्कुल बेबस है, जिसकी मशीयत हर चीज़ पर गालिब है और जिसका मदद का वो मुख्ताज है। ये थी आयात जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात ने, जिसका जिक्र हज़रत उम्मे मकतूम से शुरू हुआ। लेकिन इंसान को जो वो लोग बैठे हुए थे अहले कुरैश के कुफ़ार, एक वफ़द जो आकर बैठ गया था और आकर इससे नेमत उज़्मा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका उनमें मौजूद थी और उनको राह हिदायत पर लाने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका ने इस पर ये आयात नाजिल फरमाई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बज़ाहिर तो उम्मे मकतूम जो सहाबी, नबीना सहाबी, ज़ईफ़ कमज़ोर सहाबी आपके पास आए हैं, आपको उनका आना बज़ाहिर जो है वो नागवार गुजरा है। लेकिन आप तो इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, इस्लाम के फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं कि ये जो वफ़द आकर बैठा है, इनमें से कोई एक भी सरदार दीन इस्लाम को कबूल कर लेगा तो पूरे का पूरा कबीला जो है इनका ईमान ले आएगा, इस्लाम को तकवीत मिलेगी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हर चीज़ इंसान की तख्लीक में रख दी है, तकवा और फजूर रख दिया है। हर इंसान ये जानता है, हक को ये भी जानते हैं लेकिन तकब्बुर में अटे हुए हैं। तो इसलिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये शान नहीं है, ना आपको इसके लिए भेजा गया है कि आपकी कोई नाकदरी करे, कोई नाशुक्री करे। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्लाह ताला हम सब को इन आयात पर गौर व फिक्र करते हुए समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की नाशुक्री से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।